الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ ایک حدیث مبارکہ جس کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کو بہت ہی زیادہ، یعنی صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ان کو شمار کیا جاتا ہے، اور ان کو بہت زیادہ عبادت کرنے کا شوق زیادہ تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے ابا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، تو وہ عورت بھی صالحہ متقی پرہیزگار عورت تھی۔ تو نکاح ہونے کے بعد ان سے ایک مرتبہ ان کے سسرے نے، یعنی اس عورت کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے باپ نے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بہو سے پوچھا کہ بیٹی میرا بیٹا کیسا ہے، یعنی اس کی زندگی تمہارے ساتھ کیسے گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھے ہیں، بہت اللہ والے ہیں، بندگی بہت زیادہ کرتے ہیں، عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار زیادہ کرتے ہیں، اتنا زیادہ نمازیں پڑھتے کہ میرے پاس آنے کا ٹائم ہی چناک ملتا ہے۔ تو انہوں نے باتوں باتوں میں جو بولنا تھا وہ بھی بول دیا، یعنی اپنے شوہر اپنے بیوی کا جو حق ادا کرنا ہے وہ حق بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، اتنا زیادہ عبادت کے اندر وہ لگ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد جا کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا، میں شادی کریا سو بچے پیدا ہونے، اس کے خاندان بڑھنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، تو یہ تو عبادت ہی کے اندر لگا رہتا ہے، تو یہاں سے اس کے بچے کیسا پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جا کر سمجھایا، لیکن انہوں بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس کے بعد جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی، میرا بیٹا عبداللہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، اتنا عبادت کرتا ہے کہ وہ خود کا بھی خیال نہیں کرتا، ساتھ ہی ساتھ اس کے بیوی کا بھی حق ادا نہیں کرتا ہے، اتنا زیادہ عبادت کے اندر وہ مشغول ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور جا کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ جب وہ گھر میں تھے تو گئے تو عبداللہ بن عمر نے تکیہ دیا بیٹھنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ لیا، واپس نہیں کیا، بلکہ عبداللہ بن عمر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں وہ تکیے کو رکھ دیا۔ تو رکھنے کے بعد بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ کیسی آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا ہر دن روزے رکھنا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عبداللہ کیا روزانہ روزہ رکھنا ضروری ہے؟ کیا روزانہ نمازیں پڑھتا رہنا ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ روزانہ 15 کہ تم مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھنا، بس یہی کافی ہے، یعنی ایام 20 13 14 15 کو ایام 20 کہا جاتا ہے، چاند کے تاریخ کے حساب سے
13, 14, 15 तारीख को अय्याम बीस कहा जाता है। तो ये 3 दिन रोजे रख लो, बस यही काफी है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, नहीं, मैं जवान हूँ, मेरे अंदर ताकत है, मुझे और चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया चलो जाओ 1 हफ्ता रोजे रख लो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे और भी टाइम चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा ऐसा करो कि 10 दिन रोजे रखो, 20 दिन नहीं। तो उन्होंने फरमाया नहीं, मुझे और भी टाइम चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा करो 15 दिन रोजे रखो, 15 दिन इफ्तार करो। इफ्तार करो मतलब रोजा ना रखो, इस तरह फरमाए। और वो भी ऐसा कि 1 दिन रोजा रखो, 1 दिन नहीं, 1 दिन रोजा रखो, 1 दिन नहीं। इसको सौम दाऊदी कहते हैं, यानी 1 दिन रोजा रखना, 1 दिन नहीं, इस तरह करने को सौम दाऊदी कहते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम इस तरह किया करते थे, इस वजह से उनको सौम दाऊदी कहा जाता है। इस तरह उनको फरमाया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हें तुम्हारे बदन पर तुम्हारा हक है, तुम्हारे आंखों का भी तुम्हारे हक है, और तुम्हारे बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है, उसको अदा करना जरूरी है। इसको अदा नहीं करोगे तो उस पर गुनहगार भी बन सकते हो। तो इस तरह अल्लाह के नबी ने उनके आंखों का, उनके बदन का, उनके बीवी का, उनके बच्चों का, सबके हक हुकूक को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया। तो अब यहाँ पर देखें कि इसके अंदर बहुत सारी बातें इसके अंदर मौजूद है। इस वाक़े के अंदर बहुत सारी बातें हमारे लिए मैसेज मिलती है, बहुत सारे बातें हमें नसीहत के तौर पर मिलती है। पहली बात यह है कि उन्होंने शिकायत, यानी उनके बहू अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के बहू शिकायत इस तरह किया कि बातों बातों में ही अपना जो हाल चल रहा है उसको बता दिया। यानी अपने शोहर की शिकायत, अब यहाँ सवाल पैदा हो सकता है कि उन्होंने अपने शोहर की शिकायत करे ना, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने ऐसा फरमाया कि अपने शोहर की इज्जत की लाज रखते हुए, अपने शोहर की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत किस तरह करना है उस तरह हिफाजत भी की, और साथ ही साथ अपनी जो बात पहुंचाना है वो बात भी पहुंचाई। तो इस तरह हमें चाहिए कि अगर हमें किसी के बारे में बतलाना है तो सामने वाले की तौहीन करे बगैर, सामने वाले की बेइज्जती करे बगैर, सामने वाले के इंसल्ट किए बगैर जो बात पहुंचानी है वो बात आराम के साथ पहुंचाई जा सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी के बारे में शिकायत करना है तो उसको इतना गिरा देते हैं कि गिराकर जमीन में धंसा ही देते हैं, इतना उसके बारे में बुराई बयान करते हैं, अगर बयान उसके बारे में अगरचे छोटी भी शिकायत क्यों ही ना हो। इस तरह करना अच्छी बात नहीं है। तो एक बात तो ये मालूम हुई। दूसरी बात ये मालूम हुई कि मेहमान का भी हक हुआ करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तकिया पेश किया, बैठने के लिए। तो मेहमान जब हमारे घर आए तो हमें उन्हें अब अच्छी जगह पर बिठाना ये उसका हक होता है, चाहे वो कौन सा भी आए मेहमान, चाहे मुस्लिम आए, नॉन मुस्लिम आए, चाहे हिंदू आए, चाहे क्रिश्चियन आए, कोई भी आए, तो मेहमान बनकर जब इंसान आता है तो उसका हक अदा करना, उसकी मेहमान नवाजी करना हमारे ऊपर फर्ज होता है, चाहे वो कहाँ पर भी आए। अगर वो मस्जिद में भी आए तो मस्जिद में भी उसका इकराम किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखा जाए कि कितने सहाबा, कितने सारे लोग नॉन मुस्लिम मस्जिद को आया करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मस्जिद के अंदर बिठाकर समझाते थे। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, अगर कोई गैर कौम का आ जाता है तो उसको फौरन धुतकारने की कोशिश करते हैं, फौरन उसको गालियां देने की कोशिश करते हैं, फौरन उसको भगाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है। तो इकराम करना, अगरचे कोई भी मेहमान हमारे घर आए तो उनका इकराम करना हमारे ऊपर जरूरी होता है। दूसरा सबक इस वाक़े से ये मिलता है। तीसरा सबक ये है कि हमें अपने काम को और अपने जान का भी हमारे ऊपर हक है, यानी हमारे जान की हिफाजत करना हमारे ऊपर हक बनता है, जरूरी बनता है। इसी वजह से खुदकुशी हराम है, सुसाइड करना इसीलिए हराम है। क्यों हराम है? इसीलिए है कि अगर ये जान और माल या अल्लाह की अमानत है, उस अमानत की हिफाजत करना हमारे ऊपर जरूरी हो जाता है। अब ये सिगरेट पीना हो, चाहे शराब पीना हो, क्यों हराम है? इसलिए कि ये तमाम चीजें पीने की वजह से, शराब तो अल्लाह ताला ने डायरेक्टली हराम कर दिया है, दूसरी चीजें चाहे तंबाकू हो, चाहे गांजा हो, चाहे दूसरी चीजें जितने भी हो, ये सब पीना क्यों हराम है? इसलिए नाजायज है कि इससे सेहत बिगड़ती है। ये सेहत बिगड़ने वाले असबाब इख्तियार करना हमारे लिए नाजायज बन जाता है।
اگر کسی حافظ صاحب یا کسی مفتی صاحب سے اگر پوچھو کہ سگریٹ پی سکتے کیا، تو وہی کہے گا کہ اس کے اندر نشہ نہیں ہے، یہ تو ناجائز ہے، یعنی یہ تو نشہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اس کو حلال بھی نہیں بول سکتے، حرام بھی نہیں بول سکتے، یہ تو مسئلے کی وجہ سے۔ اگر اس کے اندر غور کیا جائے تو اس سے صحت خراب ہوتی ہے، اور یہ صحت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ بدن کو صحیح سلامت اللہ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، تو اس کو بگاڑنے والے اسباب اختیار کرنا بھی ہمیں گناہ کے اندر ملوث کرتا ہے، ہمارے اوپر حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خودکشی کرنا یہ بھی حرام اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان یہ مال ہمیں امانت کے طور پر جب دے رکھا ہے تو اس کو صحیح استعمال کرنا، اس کو صحیح طریقے سے اس کو حفاظت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو امانت کے اندر اگر ہم خیانت کر کے خودکشی کر لیتے ہیں دنیا کی پریشانی کی وجہ سے تو یہ گنہگار ہوگا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن سزا دیتے ہیں۔ اب کوئی انسان کہتا ہے کہ سوسائڈ کر لے تو اپنے ہاتھا سے کر لیتا ہے نا، اسے کہیں کو حرام ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ مال اور جان یہ اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اپنے نفس کا بھی ہمارے اوپر حق ہوتا ہے، اسی طرح بیوی بچوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے خواہشات کو پوری کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان نہیں کرتا ہے تو وہ اس سے گنہگار بن سکتا ہے، اس لیے گناہ میں ملوث نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ تیسرا بات اس کے اندر یہ آتا ہے کہ عبادت کرنا، عبادت جس طرح کھانا پینا بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اس سے بھی ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ بس نیت کو تھوڑی سی بدل لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان کی حفاظت کرنا میرے ذمہ قرار دیا ہے، تو میں یہ کھانا کھا رہا ہوں اس جان کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے صحت کی حفاظت کرنے کے لیے میں یہ کھانا کھا رہا ہوں۔ اس ارادے سے اگر وہ کھانا بھی کھاتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح بیوی بچوں سے بات کرتا ہے، اس کے اندر نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق میرے اوپر رکھا ہے، اسی لیے میں ان کی نگرانی کر رہا ہوں، اسی لیے میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر نیت کر لیتا ہے تب بھی اس کو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو ہمارا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، ہمارا سونا بھی عبادت بنتا ہے کہ سوتے وقت نیت کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کا حق ادا کرنا میرے اوپر رکھا ہے، اس لیے میں سو رہا ہوں، بس اس ارادے سے سو گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دیتے ہیں۔ تو ایک مومن کی ہر چیز عبادت بن سکتی ہے جب وہ اپنی نیت کو تھوڑا صحیح کر لے، اپنی نیت کو درست کر لینے سے ہر چیز ہماری عبادت بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ تمام باتیں اس واقعے کے اندر ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اس ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نفل عبادت کرنا ضروری ہے۔ نفل عبادت بھی نفل عبادت محبت کا تقاضا کرتی ہے، یعنی نفل عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے محبت کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی انسان محبت کرتا ہے تو جتنا زیادہ نفل ہو سکے اتنا زیادہ نفل کی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نفل میں پڑھتا ہے تو بہت زیادہ غلو کے ساتھ پڑھتا ہے، اتنی زیادہ نفلیں پڑھ لیتا ہے کہ اس کے بعد چانس ملتا ہے، یعنی ایسا پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بعض لوگ ایسے ہیں کہ نفلوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اعتدال سے کام لینے کی ضرورت ہے، یعنی اتنا زیادہ بھی پڑھ لینے کی ضرورت نہیں، اتنا کم بھی اس کو لائٹ لے لینے کی، اس کو پیچھے ڈال دینے کی، ایسے کی بھی یہ تو نفیلش نہ، یہ تو پڑھے تو بھی ثواب نہیں تو بھی کیا بھی نہیں نہ، گناہ کیا بھی نہیں نہ، اس طرح بھی نہیں سمجھنی چاہیے۔ نفل عبادت اللہ کے محبت کا حق ہوا کرتا ہے، اللہ کے محبت کا حق ہے تو اس کو ہمیں ضرور اس کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنی طاقت ہو۔ اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعض اعمال چاہے چھوٹے ہوں لیکن مداومت یعنی ہمیشہ کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے مثلا سمجھیے اگر کوئی انسان روزانہ 50 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے، لیکن یہ 50 بار سبحان اللہ ڈیلی پڑھتا ہے، کسی دن بھی ناغہ نہیں ہوتا ہے،
इस तरह ये मुदावमत के साथ कंटिन्यू होने करता रहता है। 50 बार सुभान अल्लाह पढ़ना कौन सी भारी बात है, कौन सी बड़ी बात है। देखा जाए तो 1-2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है। सुभान अल्लाह बोलते ही, शुरू करते ही खत्म होता है, सभी टाइम मालूम होता नहीं। तो ये इबादत मुदावमत के साथ करता है, चाहे 50 बार हो, चाहे 10 बार हो, चाहे 15 बार ही, लेकिन कंटिन्यू यानी एक भी दिन नागा करे बगैर डेली करता है। एक इंसान है कभी कभार नमाज पढ़ता है तो ऐसा 50 रकात, 60 रकात, 100 रकात नमाजें पढ़ लेता है, नफिल नमाजें। कब जोश आया जब पढ़ लिया, कब खाली है छोड़ दिया, इस तरह पढ़ता है। तो दोनों में कौन बेहतर है? तो फरमाते हैं कि जो इंसान 50 बार सुभान अल्लाह डेली पढ़ता है बगैर नागा के बगैर, ये ज्यादा बेहतरीन इंसान है। तो नफिल इबादत करना अच्छी बात है और ये अल्लाह के मोहब्बत का हक भी है। ये मोहब्बत का तकाजा भी यही करता है कि अल्लाह के सामने हमेशा बार बार आते रहे, नफिल इबादत करते रहे। लेकिन उसको लाइट ले लेना ये अच्छी बात नहीं है, और ना ही इतना ज्यादा पढ़ लेना एक ही बार के बाद फिर दोबारा उसकी तरफ पलट कर ना देखना, ये भी अच्छी बात नहीं है। छोटा सा भी अमल कर रहे हो, उसको अगर मुदावमत के साथ डेली कर रहे हो तो उस पर बहुत ज्यादा फजीलत मिलती है, उस पर बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। जो अमल पाबंदी से किया जाए, जो अमल कभी करे कभी ना करे, उस पर उतना ज्यादा फजीलत उसके लिए हासिल नहीं होती है। एक वाकया तो ये है। दूसरा वाकया ये है कि एक मरतबा अरवा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह के हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कौन सा काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका सवाल पूछने का मकसद ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गए तो नफीला पढ़ डालते रहंगा, क्या तो दूसरे इबादत कर डालते रहंगा, कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला इनका मर्तबा बढ़ाते चला जा रहा है कि बहुत सारी इबादतें करते होंगे। इस वजह से उनको सवाल करने का इरादा यह था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि जब अल्लाह के नबी घर में आते हैं तो घर के काम वो खुद कर लिया करते हैं। अपने जूतों को गांठ वहीं लगा लेते हैं, फटे हुए कपड़े खुद सी लेते हैं, कपड़े खुद धो लेते हैं। अगर जरूरत पड़े कभी कभार घर के आटा गोंदने में मेरा साथ भी दिया करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद कर लिया करते हैं। तो ये उन्होंने फरमाई, तो इनको ताज्जुब हुआ, क्या कहते हैं बड़े नबी होकर इस तरह काम करते हैं। इसके बाद फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का वक्त होता तो ऐसे ही चले जाते हैं जिस तरह के वो मुझे पहचानते ही नहीं है, ऐसे चले जाते हैं। तो इस वाक़े के अंदर बात यह है, नंबर 1 के घर के काम को खुद अंजाम देना ये भी सवाब का काम है। अपने काम खुद कर लेना, चाहे अपने कपड़े धोने का हो, अपने प्लेट धोने का हो, अपने जो भी जरूरतें, अपने काम खुद कर लेना ये भी सवाब का काम बनता है। ऐसा नहीं, हमारा माहौल इस तरह बन चुका है कि मैं बाहर के काम मैं संभाल लूंगा, घर के काम बीवी संभालेगी। अब मैं घर आया तो पानी भी वही ला कर देगी, मैं घर आया तो खाना भी वही ला कर देगी, और मैं खाना हाथ धोने के लिए बर्तन भी वही ला कर देगी। मैं अपने जगह पर बैठा रहूंगा क्योंकि मैं कमाता हूँ। इस तरह हमारा माहौल बन चुका है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये तरीका बता रहे हैं कि घर के काम को खुद अंजाम देने की जरूरत है, और देने पर उस पर सवाब भी मिलता है। घर के काम हमारे हम कर लिए तो इस पर कोई गलती भी नहीं है, कोई ऐब की बात भी नहीं है। लोग समझ जाते हैं कि घर के काम दूसरे का मर्द माना करे तो ऐब है, गलती है, और इस पर लोग समझ जाते हैं कि ये बेइज्जती की चीज है। ये लोग समझते हैं कि जोरू का गुलाम समझते हैं, लोग जोरू का पल्लो पकड़ लेने वाला समझते हैं। इस तरह लोग गलत बातें मर्द की तरफ मंसूब करते हैं, हालांकि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि घर के काम को खुद कर लेने पे ही बहुत ज्यादा सवाब भी मिलता है, और उस पर राहत भी हमारे लिए है, और उसमें सेहत भी हमारे लिए रखी हुई है। तो एक बात तो ये हुई कि घर के काम को खुद अंजाम देनी चाहिए, और दूसरों पर डिपेंड होकर ना होनी चाहिए। दूसरों पर डिपेंड होकर बैठ जाना, दूसरों को ही काम लगाना, ये अच्छी बात, ये सही बात नहीं है। एक बात तो ये हुई। तो ये हजरत डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि उन्होंने उनके साथ अपने शादी होने के बाद 50 पर 5 साल जिंदगी गुजारने के बाद फरमाते हैं कि मेरी शादी होकर 50 पर 5 साल हो गया, कभी भी मैं अपने बीवी से
तलख लहजे में यानी गुस्से में या झड़ालते भी ऐसे इस तरह मैंने कभी अपनी जिंदगी में 50 पर 5 साल जिंदगी में बात नहीं की। और लोग समझते हैं कि कोई आकर पानी पर चले ये करामत की चीज समझते हैं। लोग क्या समझते हैं, पानी पर चले तो करामत, हवे में उड़े तो करामत, सीधे हाथ से कोई ऐसा चीज निकाले तो ये करामत है। असल करामत तो यही है कि अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, यही करामत वाली चीज है। 50 पर 5 साल जिंदगी गुजर जाए, कोई भी इंसान झड़के बगैर, अल्लाह बगैर, गालियां दिए बगैर कोई भी इंसान नहीं रहता। फरमाते हैं कि मेरे 50 पर 5 साल जिंदगी निकाह होकर हुई है तो मैंने कभी भी अपने बीवी के साथ इस तरह का मामला मेरे साथ पेश नहीं आया है। और अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो फरमाते हैं कि जब भी कोई मेहमान हमारे घर आते थे, मेरे वालिद साहब कभी कभार अपने घर मेरे घर आते थे, तो कभी भी मैंने अपने बीवी से ये नहीं कहा कि खाना लगाओ, आओ खाना पानी ला कर दियो, खाना हो गया तो बर्तन उठा लो, इस तरह मैंने कभी ये बात नहीं कही। जब भी मेरे वालिद साहब आते हैं तो मैं उनकी खिदमत करना मेरे जिम्मे जरूरी समझता हूँ, इसलिए मैं खुद उनके साथ मिलकर काम करने लग जाता हूँ। तो इस तरह घर के काम को मिल बांट कर करेंगे तो तभी घर का काम सुकून के साथ, घर की जिंदगी आसानी के साथ चल सकती है। अगर घर के काम को सिर्फ हम बांट कर रह जाएंगे तो ये इससे क्या होता है, एक किस्म की तकब्बुर इंसान के दिमाग में बैठा हुआ होता है, जो कि गंदी बात है, जो कि बुरी बात है। क्या है कि मैं घर का मर्द माना, मैं बोले जैसा चलना, मैं बोले जैसा करना, मैं पानी लाओगे तो लाना, बैठोगे तो बैठना, उठोगे तो उठना, बैठोगे तो बैठना, इस तरह जितने भी बातें हैं, ये बातों की वजह असल ये है कि एक दिमाग के अंदर तकब्बुर की एक शैतान अंदर बैठा हुआ होता है, जो तकब्बुर हमें ये काम करने पर मजबूर करता है कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, इस तरह हुक्म चलाओ, इस तरह उसको गुलाम बनाकर रखो, इस तरह उसको नौकरानी बनाकर रखो। ये जितने भी चीजें हैं ये हमारे अंदर की एक तकब्बुर, एक किस्म की खन्नास, एक किस्म की खबीस चीज है जो हमारे दिमागों के ऊपर, हमारा माहौल ने हमारे ऊपर डाल दिया है। इससे हमें छोड़ने की जरूरत है, अपने आप को दूर करने की जरूरत है। डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं जब भी अपने काम खुद करता हूँ, और फरमाते हैं कि मैंने इतनी लंबी यानी 50 पर 5 साल जिंदगी गुजारी है, कभी भी मैं अपने बीवी से ये भी नहीं कहा कि जरा मुझे पानी पिलाओ, पानी ला कर दो। जब भी मुझे जरूरत होती मैं खुद उठकर जाकर अपने पानी को खुद पी लिया करता था। और मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने बीवी का नौकर हूँ, अल्लाह ताला ने इसको मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है। खाना पकाना औरत के जिम्मे फर्ज नहीं है, वो अपने जानिब से कर रही है तो हमारे ऊपर एहसान कर रही है। तो जब मेरे ऊपर ये एहसान करती है तो मैं खुद पानी पीने के वास्ते मैं क्यों नहीं उठ सकता हूँ, और मेरे जिम्मे उसके मेरे वो कपड़े धो रही है तो मैं खुद क्यों नहीं उनके लिए दूसरे काम मैं उनके करके दे दूं। तो जब वो मेरे ऊपर एहसान करती है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसके एहसान का बदला दूं, मैं भी उसके एहसान को पूरा करने की कोशिश करूं। जब वो मेरे काम करती है तो मुझे भी चाहिए कि मैं भी उसके काम के अंदर हाथ बटाऊं, मैं भी उसके काम को पूरा करूं। तो अब्दुल्ला बिन हजरत उर्वा बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह जब सवाल किए तो सवाल करने का मकसद ये था कि अल्लाह के नबी कोई खास अमल करते होंगे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये मर्तबा अता कर दिया है। तो जब ये बात कही गई तो उनको बहुत ताज्जुब हुआ। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। सहाबा को बोलते तो सहाबा हमेशा तैयार रहते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम को पूरा करने के लिए तैयार रहते थे। और साथ ही साथ अल्लाह के नबी के बीवियां भी अपने उनके अल्लाह के नबी के कामों को खुशी खुशी पूरा करने के लिए तैयार थे। फिर भी अल्लाह के नबी ये नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा नबी, मेरी वजह से अल्लाह ताला पूरी दुनिया को बनाया, मैं तमाम अंबिया को इमामत करा के आया हूँ, मैं तमाम मेराज पर गया हूँ, अल्लाह को देखा हूँ, इतना बड़ा नबी हो को मैं गई घर के काम करना। कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में ये बातें नहीं फरमाई, बस अपने कामों को खुद कर दिया करते थे। और जब जरूरत होती तो अल्लाह ताला भी उनके कामों को, अल्लाह के नबी के कामों को पूरा कर दिया करता था। जैसे कि वाक़या आता है कि खंदक के मौके पर जब ग़ज़वा खंदक हो रहा था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बहुत सारा दुश्मन था, 10,000 का लश्कर सामने मौजूद था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात को आराम फरमाना चाहते थे।
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मैं अल्लाह के नबी मुझसे फरमा रहे थे कि मुझे आज लगता है कि मेरे लिए कोई पहरा दे तो मुझे बहुत अच्छा रहता है, यानी मैं आराम के साथ कुछ आराम कर सकूं, कुछ टेंशन के बगैर आराम से सो सकूं। ये बातें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे। तो इतने में तलवार की आवाज़ आई, गेट के पास तलवार की आवाज़ आई। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कौन है? तो उन्होंने कहा मैं साद बिन अबी वक्कास हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं साद बिन अबी वक्कास हूँ। तो उसके बाद वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने लगे, सो गए। तो यहाँ पर देखा जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल के अंदर सोचा था, तो अल्लाह ताला ने इनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में बात डाल दी। तो वह आकर पहरा देने के लिए तैयार हो गए, गेट पर आकर खड़े हो गए। तो इस तरह इन तमाम बातों से यही बात मालूम होती है कि घर के काम को खुद कर लेने में ही ज्यादा सवाब है और उस पर सवाब भी मिलता है और अपने लिए घर के जिंदगी भी आसानी के साथ हो सकती है। और लोग ये समझते हैं कि घर के काम औरत आज करना, मर्द माने करे जानी, ये जितनी भी बकवास की बातें हैं बेकार हैं, उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। और उससे इज्जत क्या तो कम होती, क्या इज्जत भी कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई इंसान मन तवाज़ा लिल्लाहि, जो इंसान अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसको बुलंद मर्तबा अता फरमाते हैं। और मुस्लिम शरीफ के एक रिवायत के अंदर आता है कि जो इंसान अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, अपने आप को छोटा बनाकर रखता है, तो अल्लाह ताला उसको इज्जत अता फरमाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि इससे इज्जत भी नहीं घटेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी, सवाब भी हमारे लिए मिलने वाली चीज़ है। इसलिए घर के कामों को खुद करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलाग।